Good morning, friend. We are discussing about the vision as 5 questions. Let's discuss the first question. First question is related to the geography section, and the subsection you can correlate it with the arrangement and the availability of the resources. First question is like that: which among the following is the largest producer of uranium in the world? What is the work of the uranium? Uranium is used as an fuel. जो ईरान की जो कोपा की जो स्कीम थी यूएसए एंड ईरान के बीच में, that is related to the uranium product because they wanted to fissile it and make the atom bomb. Let's see the thing. ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, देयर कैपिटल इज कैनबरा, कनाडा, ओटावा, ईरान, तेहरान एंड काजाख्स्तान. तो योर ऑप्शन इज लाइक दैट. आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन बट इन हिंदी. आपको ये बताना है कि यूरेनियम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की बात की जा रही है ना कि रिजर्व की, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का. तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कनाडा, थर्ड ईरान एंड फोर्थ काजाख्स्तान. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लेट्स सी द क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. सी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू देयर wavelength. It means that if wavelength is much more higher then the electromagnetic radiation has less energy, right? Let's see the option there: gamma rays, UV rays, X rays, and your option is this. I again repeat the question. Arrange the following electromagnetic radiation in decreasing order of their energy, and first option is gamma rays, UV rays, X rays. See, there is a visible light. Visible light की बात करें तो then है UV rays, UV, X rays and gamma rays or whatever. And here is infrared rays, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव. इट्स देयर इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी एनर्जी का, एंड ऑप्शन आर दीज. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is related to the storytelling question. Let's see the question. This fort is located near उदयपुर in मेवाड़ रीजन में ये पड़ता है. ये बर्थ प्लेस माना जाता है मेवाड़ लेजेंडरी किंग महाराणा प्रताप का. तो वन फैक्ट ऑल्सो गिवन हियर इज दैट मेवाड़ लेजेंडरी. हु इज द मेवाड़ लेजेंडरी? दैट द महाराणा प्रताप. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. विद द वॉल of over 36 kilometer long, the fort has the second largest wall in the world after the Great Wall of China. Great Wall of China. After that, it is the second largest wall in the world. The above description best describe which of the following fort. So first is Chittorgarh, that is Kumbhalgarh Fort. Number third, Ranthambore, and fourth is Mehergarh Fort. I can repeat the question. I think I repeat it in the second way. This fort is located in Udaipur in the Mewar region. It is the birthplace of the Mewar legendary, that is Maharana Pratap. And इसकी जो wall है, wall 36 किलोमीटर लॉन्ग है और ये सेकंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट? लेट सी द ऑप्शन: चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर एंड मेहरगढ़. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is related to Chagos Island, that is a disputed territory which of the following that is in news. Number 4, where is it mean that where it is located? Basically the question is asking like that: South China Sea, Sea of Japan, third Indian Ocean, fourth is Antarctic Ocean. I can repeat the question. Chagos Island एक disputed territory है, वो किस के बीच में एक विवादित है? तो South China Sea, Sea of Japan, where is it located? Basically Indian Ocean or Antarctic Ocean. Let's see the next question. Let's see the answer to the first question. Which of the following the largest producer of uranium in the world? That is the Kazakhstan. If you are talking about the detail, Kazakhstan produces the largest share of the uranium mine, that is 43% of the world supply from mines in 2019, followed by the Canada, Australia, Chu-Sarayu Basin in central Kazakhstan. Do you remember this basin? Chu-Sarayu, Churayu, Churayu Basin in this central Kazakhstan alone account for over half of the country's known uranium resources. So option D is the correct option here. Let's see the next question. Which of the following? Again, repeated the slide is there. Okay, which of the following decreasing order of the electromagnetic radiation or the energy, whatever you wanted to say. So the higher the wavelength, the higher will be the energy. Higher will be the wavelength, the less will be the energy. But at the same point, higher will be the frequency, and frequency is higher in case of the gamma, then X-ray, and then UV radiation. Okay, first, third, and second. Let's see the things. Gamma rays are the most energetic known form of electromagnetic radiation that are very frequent 3 into 10 to the power 19 hertz or higher. They are produced from the decay of the excited nuclei of the radioactive element. तो इन radioactive elements से मिलती है. Gamma rays can penetrate through several centimeters of the lid, and large doses of the harmful rays are emitted from it. If you are talking about the X-rays that are also used for the purpose of the ultrasound. Okay, X-rays have frequency ranging from 3 into 10 to the power 6 into 3 into 10 to the power 19. In between that, X-ray penetrate easily through some material, for example fat, muscles, but not others such as bone, which makes them useful in the medical sector. इसका बहुत ज़्यादा यूज है. UV radiation if you are talking about has a frequency ranging from the 8 into 10 to the power 14 to 3 into 10 to the power 16. Prolonged exposure to UV rays can cause sunburn, tanning of the skin, and can cause skin cancer also. The earth ozone layer absorb most of the incoming UV light. तो आपको ये बताना है कितना % जो है हमारी ओजोन इसको ऑब्जर्व कर लेती है.
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन उदयपुर, मेवाड़ रीजन में पड़ता है और ये बर्थ प्लेस माना जाता है मेवाड़ लेजेंडरी किंग महाराणा प्रताप का। और ये जो है 36 किलोमीटर लॉन्ग इसकी फोर्ट की वॉल है। ये सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये किसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इन गिवन ऑप्शन में? तो कुंभलगढ़ फोर्ट है। लेट्स सी, लोकेटेड 84 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ उदयपुर, कुंभलगढ़ फोर्ट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटाडल आफ्टर द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन द मेवाड़ रीजन itself. This fort is located in Ravli range. Of the fort was built in the 5th century AD by the Rana Kumbha. It is immense sentimental significance for the people because of the birthplace of the legendary Mahana Pratap there. Let's say Chagos Island, you know very well, you see of Indian Ocean में ये पढ़ते हैं। Chagos Island एक archipelago है, 7 atolls इसमें पाए जाते हैं, इसमें 60 आइलैंड है। इंडियन ओशन अबाउट 500 किलोमीटर मालदीव से पड़ता है। इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ द मोरिशियस सिंस 18th सेंचुरी। लेकिन व्हेन द फ्रेंच फर्स्ट सेटल द आइलैंड बिफोर मोरिशियन इंडिपेंडेंस इन 1965, द यूके स्प्लिट द आर्कीपेलागो फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द मोरिशियस इनटू द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एंड परमिटेड द यूएस टू यूज डिफेंस फोर्सेज। तो उनके बीच में डील हो रखी थी। तो अभी ये जो है दोबारा यूएसए का नेवल बेस बन चुका है और वो देना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। स्टैंडिंग क्रॉप इन इकोलॉजी रेफर्स टू व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप? द टोटल लिविंग बायोमास इफ एन इकोसिस्टम इज फाउंड देन वी कैन कॉल इट एज द स्टैंडिंग क्रॉप। Storage of an energy in the system is known as the living material in both plant and animal. The amount of the living material present in the standing crop is, so first option here is correct. Let's see the here the revisionary part that is related to the blockchain traceability interference for the Indian species. We are using Indian see what the topic is. वी आर यूजिंग ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस के लिए हम यूज़ करें ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी टेक्निक को और किस तरीके से इसका एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाया जा सकता है। लेट्स सी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डू रिमेंबर दिस मिनिस्ट्री ऑल्सो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, वेयर इज स्पाइसेस बोर्ड इज लोकेटेड आई थिंक इन कर्नाटका. And UNDP first accelerator lab signed memorandum of understanding to develop the blockchain powered traceability interface for Indian spices. The Spices Board of India, if you are talking about the autonomous commodity handler, Ministry of Commerce and Industry, responsible for the export, promotion of the 252 scheduled spices and development of the cardamom itself. It's aim to supply the strengthen the supply chain for clean and safe spices. UNDP India, if you are talking about the United Nations Development Program, is the United Nations Global Development Program. It has 170 countries and territories that are a part of it. Its aim is to countries in eradication of the poverty and reduction of the inequality. UNDP India has worked in India since 1951 in almost all areas of the human development, from inclusive growth to sustainable development को SDG का जो इंडेक्स तैयार करता है वो नीति आयोग करता है. एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कई सारी रिपोर्ट निकालता है. यूएनडीपी निकालता है HRD, मतलब जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट, मल्टी पॉवर्टी MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, यही निकालता है. 2010 से इसने स्टार्ट किया था. जेंडर इक्वलिटी की निकालता है, इनइक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एंड ये 4-5 रिपोर्ट निकालते तो पता होना चाहिए. द एक्सेलरेटेड लैब आर UNDP न्यू रे ऑफ वर्किंग इन डेवलपमेंट डिफरेंशियली बाय चैलेंजिंग द स्टार्टअप क्योर एंड ट्रेडिशनल वेज. The UNDP Spices Board joint initiative. What is it? India is the largest exporter, producer and consumer of spices in the world, not from today but also from the world. But Indonesia, Malaysia, जो हमें इक्वेटोरियल कंट्रीज, वहाँ पे भी स्पाइसेस जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है. इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट क्रॉस अ माइलस्टोन ऑफ $3 billion USD. नीड, वट इज द नीड ऑफ इट? वाई वी आर प्रोमोटिंग ऑल दिस थिंग? नीड बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द वैल्यू एडिशन, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, सर्टिफिकेशन फॉर इक्वलिटी एंड फूड सेफ्टी एक्सेट्रा. हाउ डज द ब्लॉकचेन इंटरफेस वर्क? तो किस तरीके से काम करता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? लेट्स सी. पहले हम देखते हैं ब्लॉकचेन ट्रेस इंटरफेस वर्क कैसे करेगा. इंटीग्रेशन करेगा हमारी ये ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विद द ई स्पाइस बाजार पोर्टल से एंड डेवलप्ड बाय द स्पाइस बोर्ड ऑफ कनेक्टिंग फार्मर विद मार्केट. तो फार्मर को यहाँ पे मार्केट के साथ कनेक्ट किया गया है, किसके थ्रू? ई स्पाइस बाजार के. इट विल अलाउ फार्मर एंड अदर मेंबर ऑफ द सप्लाई चेन टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन मेकिंग द एंटायर सप्लाई चेन मोर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल. तो ये इनका ये मेन एम था. इंटरफेस जो है, ये जो इंटरफेस है ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको यूज़ किया जा सकता है. ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट पायलट बेसिस पे कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है. यहाँ पे 3000 फार्मर जुड़े हुए हैं. दिस फार्म जो है इंगेज हैं, क्योंकि चिली जो है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है एंड टर्मरिक फार्मिंग. तो इसी को ही बेस बनाते हुए स्पाइसी कैटेगरी है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द शेड्यूल स्पाइसेस दैट आर आई थिंक 42 थे कार्डमम के मिला के. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट इन सप्लाई चेन एंड ट्रेड, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल स्पाइसी वैल्यू चेन फॉर ऑल स्टेक होल्डर, टू इन्हांस द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन trust on yourself and their produce whatever they wanted to be produced, to facilitate the source of spicy for the export as well as the local use. तो local use के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पूरा डेटा कंपाइल्ड वे में होना चाहिए. एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कहाँ से फ़ायदा है, कहाँ से कमी हो रही है. तो उसके हिसाब से किसानों को जानकारी दी जा सकती है कि आप इन चीज़ों को उगा सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो एज पर द डिमांड एंड द सप्लाई मिसमैच. टू कवर ऑल मेजर स्पाइसी एंड रीजन ऑफ द कंट्री. तो इनका मेन एम है. इसमें मार्केटेबिलिटी भी जो है स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस है इसकी फार्मर के लिए भी और कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि हमें पता होगा डेटा का सबसे अच्छा यूज़ यही होता है कि अगर हमें डेटा पता हो तो हम
पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है, क्या हम ज़्यादा उगा सकते हैं, क्या कम किया जा सकता है, तो वट एवर वट इज़ द सिग्निफिकेंस इट हेल्प टू कनेक्ट द स्पाइसी फार्मर। तो इंटरनेशनल मार्केट से हम जुड़ पाएंगे, ये जो है फार्मर की इनकम को इनडायरेक्टली बढ़ाएगा क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। नंबर थर्ड, ये रीबिल्डिंग एंड द पेंडेमिक अफेक्टेड सप्लाई चेन में भी हेल्प करेगा एंड वी हैव टू कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव नॉलेज बिकॉज मेनी टाइम्स वी डिसरप्ट फ्रॉम द लोकल मार्केट because of pandemic and many other issues that are found in the local areas. What is blockchain? Let's see. Blockchain is a specific type of electronic database that differ from a typical database in the way it store information block and तो मतलब क्या है कि ये एक टिपिकल डेटाबेस है जहाँ पे स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू, एक ब्लॉक के थ्रू, ब्लॉक, और वो कनेक्टेड होती है एक चेन में जहाँ से हम यूनी डायरेक्शन एंड बैक स्पेस करके पीछे भी जा सकते हैं। तो इसके फ़ायदा भी है कि हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन से किसने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है उन पैकेट के थ्रू जिससे कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ये जो है कनेक्टेड होते हैं हैजर बोला जाता है और इसका जो साइन होता है इस तरीके से होता है हैज। इट डिसेंट्रलाइज, ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन के एट वन प्लेस, इंश्योर ईज एंड ट्रांसपेरेंसी इन डाटा मैनेजमेंट अक्रॉस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ऑल स्टेक होल्डर जितने भी हमारे जैसे फार्मर हो गया, ब्रोकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, रिटेलर हो गया, रेगुलेटर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इन सब चीज़ से बेनिफिट होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। आज हम इंपॉर्टेंट जो वाइटामिन है उससे रिलेटेड कुछ बात कर ले रहे हैं। वाइटामिन B1 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो B1 को हम थायमिन बोलते हैं, वाइटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। तो आपको क्या क्या याद रखना, पहले बात तो ये बता दे रही हूँ। B1 याद रखना है, B3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, B9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, B12 ये सब पता नहीं, B12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है ये जो है फैट सोल्यूबल है B12। वैसे तो कॉम्प्लेक्स B जो है, जो विटामिन B है वो वाटर सोल्यूबल है, ऑल्दो बट विटामिन B12 जो है फैट सोल्यूबल है। B9 की बात करें तो फोलिक एसिड है, ये उनको दिया जाता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। एंड B3 की बात करें तो नियासिन है, आप निकोटीन से याद करना B3 से, ठीक है। B1 की बात करें थायमिन, B2, B5, B7 जो रह गए हैं उसको देख ले रहे हैं। B6 का भी याद रखना है, B6 है पायरोडोक्सिन। अब बचा क्या क्या, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पैंथेनोइक एसिड एंड B7 दैट इज बायोटिन। तो ये बचे हुए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन, बट बिफोर वी एंडिंग द सेशन आई वांटेड टू गिव यू सम डिटेल अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन हम आंध्र प्रदेश से जानते हैं। लोकेशन यू नो वेरी वेल, लोकेशन से कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो आप हैदराबाद भी बोल सकते हैं या फिर अमरावती बोल सकते हैं। और फिलहाल इसको 3 कैपिटल में डिवाइड करने की बात की जा रही है। एरिया यू डू नॉट नो, डेंसिटी 308 है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। डिकेटल ग्रोथ की बात करें तो 11.0 है और ये नेशनल एवरेज से बहुत कम है, नेशनल एवरेज अप्रोक्स 17 है। सेक्स रेशियो की बात करें 992 है, काफ़ी अच्छी है। 06 से बात करें 943 है। लिटरेसी रेट यहाँ पे 67.41 है जो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट एज आंध्र प्रदेश हैज़, इट शुड हैव मच मोर हायर। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अनंतपुर है एंड मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट गोदावरी है इसकी। लिस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इन्ना ग्राम है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन जो है ईस्ट गोदावरी ही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो विशाखापट्टनम है और ये सबसे ज़्यादा डीप वाला पोर्ट भी यहाँ पे पाया जाता है और ये नेचुरल नहीं है। स्टेट डे की बात करें तो 1 नवंबर मनाया जाता है, ये पहली स्टेट थी और इसकी प्रिंसिपल लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू है। लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं अगैन विशाखापट्टनम है। टाइम जोन की बात करें तो IST जो हम 82.5 डिग्री जो क्रॉस होता है तो यहाँ से भी क्रॉस होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु है एंड उर्दू है। एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट 1953 में हुई थी। स्टेट बर्ड की बात करें तो ब्लैक बक है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है। स्टेट ट्री नीम है। स्टेट फ्लावर लोटस है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें तो तंगु टुटरी प्रकाशम है। फर्स्ट गवर्नर जो थे सर चंडू लाल माधव लाल त्रिवेदी थे। और वेबसाइट यू नो वेरी वेल। बात कर ले रहे हैं हिस्ट्री की। देर आर 13 डिस्ट्रिक्ट विद 9 कोस्टल आंध्राज एंड 4 रायलसीमा से जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है यहाँ पे। हैदराबाद जो है ज्वाइंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश की एंड तेलंगाना की फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर जो एक एग्रीमेंट हो रखा है। द फर्स्ट कैपिटल जो सतवाना की थी वो धरकन थी विच इज आइडेंटिफाइड धरकोत नियर अमरावती और गंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। नियर सिमुख शिफ्टेड हिज कैपिटल एट टू पायथन जो आई थिंक महाराष्ट्र में पड़ता है। सिमुखा जो जिसने रूल किया है, जो सतवाना किंगडम का एक राजा हुआ करता था, रूल्ड फ्रॉम 235 टू 213 BC। तो इतना ज़रूरी नहीं है आपको। सतकर्णी सेकंड जो है लॉन्गेस्ट रूलर रहे हैं। हालांकि जो इनके 17th रूलर थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वाज द कॉम्पाइलर ऑफ द फेमस सप्तसती के कॉम्पाइल जिसमें 700 रोटी गाथाज महाराष्ट्री के रिगार्डिंग लिखी गई है। सप्तसती ओपन विद द पैसेज इन अडोरेशन ऑफ शिवा के रिगार्डिंग वो लिखी गई है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग इसके बाद हुए सतवाना पार के वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। सतवाना एम्पायर जो है कोलैप्स हो गया था कब, व्हेन अभिरार सीज्ड महाराष्ट्र एंड शाखा वाकूज एंड पल्लवाज अप्रोप्रिएटेड द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द
Satavahana dynasty. After the decline of the Satavahanas, there was a chaos in the region till the advent of the ईस्टर्न चालुक्य. ईस्टर्न जब तक चालुक्य नहीं आए थे तो वहाँ पे chaos था. ईस्टर्न चालुक्य की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच थी जिसकी कैपिटल बदामी हुआ करती थी. द मेन किंग ईस्टर्न चालुक्य के कौन कौन से रहे, जैसे विष्णुवर्धन हो गए, जयसिंह हो गए, विष्णुवर्धन सेकंड हो गया एंड विजयादित्य हो गया. द सक्सेसर जो महादेव गणपति देव वाज द ग्रेटेस्ट ककाटिया रूलर दैट आर फाउंड देम. हिज रेन ऑल्सो गोल्डन पीरियड ऑफ आंध्र हिस्ट्री दैट यू शुड नॉट बी सो इम्पोर्टेंट है. एंड बात करें तेलंगाना की तो आप रहने दीजिए. एडमिनिस्ट्रेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट. इकॉनमी आंध्र प्रदेश जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद रखना. एग्रीकल्चर जो है ऑक्यूपेशन 60% ऑफ पीपल हेयर डेट आर फाउंड देयर. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, राइस होता है, ज्वार होता है, बाजरा, मेज़, रागी, स्मॉल मिलेट, पल्सेस वगैरह होते हैं यहाँ पे. अदर प्रोडक्ट जो यहाँ पे कैश्यू, एकलप्टस ऑयल वगैरह यहाँ पे पाया जाता है. नेशनल हाईवे की बात करें तो 4472 किलोमीटर है. मिनरल कौन कौन से पाए तो आयरन ओर है. तो कौन कौन सा एरिया, तो कुड़प्पा, कुरनूल, चित्तौड़, कृष्णा, वरंगल में पाया जाता है. कोल की बात करें तो श्रृंगेरी, तंदूर, मैग्नीज, रामगंडा, कोपर, अग्नि, गुंडल, गानी एंड गोल्ड की बात करें तो चिगरा गुंटा यहाँ पे पाया जाता है. जहाँ पे भी टी ए आ जाता है तो याद रखना कि ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है. ओंडा आ जाए या फिर टा आ जाए लास्ट में. लेंथ ऑफ द स्टेट की बात करें तो 846 किलोमीटर है. विड्थ ऑफ द स्टेट हाईएस्ट पीक की महेंद्रगिरी पाई जाती है यहाँ पे, और ये जो है ईस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है. एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है. रेनफॉल जो है 110 से 125 सेंटीमीटर. मेजर रिवर यहाँ पे कृष्णा, गोदावरी, मूसी, पेन्नो, टंग, भद्रा यहाँ पे पाई जाती है. मेजर कैनाल गोदावरी डेल्टा कैनाल है, कृष्णा डेल्टा कैनाल है, तुंगभद्रा डेल्टा कैनाल है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, लाल बहादुर कैनाल. एग्रीकल्चर जो है ऑक्यूपेशन 60% ऑफ द पीपल का. राइस जो है मेजर फूड क्रॉप है जो यहाँ पे पकाई जाती है और बनाई जाती है. अबाउट 77% ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द राइस. फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 23% ऑफ द स्टेट एरियाज है. तो बस ये याद रखना. मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हेयर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, मककुंड प्रोजेक्ट एंड प्रकाशम प्रोजेक्ट, पोचाम्पड प्रोजेक्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, लेट्स सी अगेन. मैं इसको जो मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट उसके बारे में बता दें. नागार्जुन जो है कृष्णा रिवर पे है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा पे है, मकचूंड रिवर पे ही, प्रकाशम कृष्णा रिवर पे है एंड पोचामठ प्रोजेक्ट एट आर फाउंड ऑन द गोदावरी रिवर. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे. बस इतना इसके बारे में बहुत है. तो हमने पढ़ा क्या क्या है. पहली बात तो यहाँ पे इसकी क्या क्या लोकेशन रही है, कौन कौन सा बर्ड ट्री, फॉर एग्जांपल इंडियन रोलर ट्री, यहाँ पे नीम, लोटस वगैरह होता है. 13 डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है. कौन सी डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गोल्डन पीरियड जो आंध्र प्रदेश का है वो किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है, तो ये जानना था हमने. एंड तेलंगाना की ओके लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट के बारे में देख ले. लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 मेंबर हैं. हाई कोर्ट जो है 1954 में हमारे सामने आया था. बस इतने बारे में पता होना चाहिए, राइट. बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.